हाँ जी, पहले होमवर्क पे आ जाओ। मुंगेरी लाल शर्मा। बताओ जी। आगे आगे आ जाओ, ठीक है ना? बैठे हो, आगे आगे बैठो, ठीक है ना? बताओ। एडवांस में मेरे रीड के लिए पढ़। आई बी अपोलोजेटिक फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स। ठीक है ना? हाँ बताओ जरा। मुंगेरी लाल शर्मा का केस, उसके फैक्ट सबको पता है, ठीक है जी। मेन इशू क्या था इसके अंदर? हाँ हाँ। मांगा क्यों नहीं? क्वेरी क्या है? नहीं, क्वेरी बताओ क्या है इसके अंदर? हाँ। मांगा क्यों नहीं? वो तो इसकी इच्छा है भाई। मांगा क्यों नहीं क्या होता? नहीं मांगा, मेरी मर्जी। आज तो खीर खा ले, नहीं खाता यार, खीर खा लेना। अरे नहीं खाना, मेरा मन नहीं कर रहा। यस। क्या आप सेपरेट सूट डाल के अलाउ करोगे क्या? ठीक है जी। अब जैसे आप मना करोगे तो वो मुंगेरी लाल शर्मा आपको उसमें दिखाएगा कि देखो जी, 34 में लिखा हुआ है कि आपको दूसरी रिलीफ मांगने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? अब आपने मना किया, लेजिस्लेशन ने मना किया, मैंने नहीं मांगा। ठीक है ना? तो इस कारण से अब इंटरप्रिटेशन के हिसाब से मेरे को तो सेपरेट सूट डालना है। एरियस मेरा तो, मेरे साथ तो अन्याय हो जाएगा बहुत ज्यादा। समझे? यस नो। लिखो, हेडिंग बना लो सेक्शन 34 की। आवाज आ रही है ना? पीछे तक आ रही है आवाज? आ रही? ठीक। हाँ, लिखो। द पॉलिसी बिहाइंड सेक्शन 34 SRA is basically to bring about the certainty in legal relations and also to legal status of a person. Full stop. It is stipulated through section 34 that if there is a declaration of entitlement of plaintiff that will provide an extra assurance to the plaintiff regarding his legal claim in respect of said legal character, in respect of said legal character, and his legal right
and his legal right. Full stop. This assurance and stability of legal relations may enable the plaintiff to bring about improvements upon the subject matter, कॉमा डाल के, be it a legal character or a right as to some property. For example, if the plaintiff claims the ownership of agricultural land and wants to bring about some improvements on the land through better agricultural techniques, and for that purposes if he wants to make investments, आगे बैठिए, आगे आगे बैठे ना, तेज नहीं बोल पाऊंगा, make investments कितने कितनी जगह छोड़नी है बताओ तो, आधा पेज छोड़, then he may be allowed for doing so, comma, if there is another person who denies his title, then the declaration of such title may create a greater stability of his right upon the property and enables him to make the investment in said land. Full stop. नेक्स्ट पैरा बनाओ जरा, द प्लेंटिफ, बड़े ध्यान से लिखना पैराग्राफ, द प्लेंटिफ हैज टू प्रूव that he is entitled either to a legal character or to a right as to the property.
full stop. Here, the word legal character means the legal status or the legal relationship with respect to some other person or group of persons, or it may be legal status with respect to any post, comma, similarly, in respect of property, it has to be a right as to that property. Full stop. The use of word right as to, right as to को इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद करो, is suggestive of that the right is not only the ownership or possessory right, it may be other kind of right in relation to that property. For example, right to passage, passage, rasta, through someone's land, मंज में कोमा एस वाला, full stop. Right to get maintenance or easementary rights will also be included within the ambit of section 34 SI. Full stop. बड़े ध्यान से. For the purpose of section 34 SRA, the term legal character can safely be referred to relationships for example the relation of husband and wife, comma, principal and agent,
और दूसरा लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। और फादर और सन का रिलेशन डाल दे। हाँ लिखो, सही, गुड। मास्टर एंड सर्वेंट। अच्छा बताओ, फादर एंड सन डाल दे, लिखे? क्यों? लिखो, एंड फादर एंड सन एटसेट्रा। बंद मत करो इसको, ठीक है ना? इसको एटसेट्रा करके लिखो। देखो नेक्स्ट पैरा बनाओ। अच्छा क्यों आया है फादर एंड सन? ना, फादर एंड सन, यस। देखो राइट जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट है जो सिर्फ सन होने से ही आपको मिल जाएंगे, है? यस नो? है, ठीक है ना? तो यस, ये एक करेक्टर है, लीगल करेक्टर है, ठीक है ना? ये वैध चरित्र है उसका, वो पात्र है, ठीक है ना? चरित्र मतलब पात्रता, ज्यादा बेटर वर्ड। चलो नेक्स्ट पैरा बनाओ। मेन सेक्शन provides for the relief, provides for the plaintiff not to be bound for further relief where as the provision mentioned it as a mandate to the court that it shall not pass the declaratory decree pass the declaratory decree unless the further relief has been claimed. Full stop. It appears to be an apparent conflict appeared क्या है? apparent conflict between the enabling provisions of main section and prohibiting mandate of provision. Full stop. The term further relief को इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर लो, means a relief which is consequential upon the grant of some other relief. For instance, the relief of possession can be granted only if the title has been declared.
That is, the possessory relief is consequential upon the declaratory relief. Full stop. On the other hand, an alternative relief is a relief which is available simultaneously upon the proof of cause of action. Full stop. Here, it is the duty of the plaintiff to claim the alternative relief simultaneously. Else, the prohibition of Order 2 Rule 2 CPC may apply. Full stop. But in the case of further relief, is not apply as such, they cannot be claimed jointly. For example, the claim of damages, comma, specific performance and injunction can be claimed upon the breach of contract, either co-jointly or alternatively. Full stop. Next para लिखो जरा. The main section which enables the plaintiff to not to claim further relief is addressed to the plaintiff. As the plaintiff would be required to deposit the court fee for all the reliefs that he claimed. And since
The further relief is consequential upon main relief of declaration, comma, he may choose not to deposit the court fee for the further relief, as he is not sure at the first instance whether he will be granted the main relief or not. Paragraph fill up करो. On the other hand, proviso to section 34 is addressed to the court and in order to avoid multiplicity of proceedings, the court is comma डाल के proceedings के बाद comma, the court is directed not to grant the decree, not to grant the decree if further relief has not been claimed क्या है not been claimed full stop. The harmony between the two provisions lies in the fact that the plaintiff may avoid claiming any further relief, comma, but in the course of proceedings, if the court suo motu believes that the main relief can be granted, then the declaration may be given, or defendant may have objections in this regards, then the court may direct
the plaintiff to amend his pleadings and to claim the further relief. Full stop. In such a case, plaintiff has to deposit the court fee for such relief full stop पैरा अलग करो the proviso to order 6 rule 70 provides that any amendment of pleadings should not be allowed once the trial has been commenced. The trial has commenced with comma डाल के unless the court comes to the conclusion that despite due diligence, the conclusion that despite due diligence, the pleadings could not have been raised earlier as per the proviso of order 6 rule 17 full stop 17 full stop such amendment not allowed to claim the further relief as the plaintiff was aware of such relief at the time of the institution of the suit. Full stop. Nevertheless, section 34 proviso is a specific provision and order 6 rule 17 is a general provision which gives the procedure only and the main purpose of section 34 is to avoid the multiplicity
of proceedings. Hence, hence से आगे और पीछे दोनों तरफ कॉमा लगा लो. Despite the fact the trial has commenced, the amendment shall be allowed by the court. Full stop. The court shall not, on the face of it, simply because simply because the further relief has not been claimed, comma, dismiss the suit. Rather, it must allow the plaintiff a reasonable opportunity to amend his pleadings and to deposit the requisite court fee. ठीक हो गया जी. चलो आज जरा वो होमवर्क पे आ जाओ. देखो, इसको क्या हुआ? अच्छा, ऐसा था क्या? ये वैसे ऑन तो कर दिया था ना मैंने. आज नहीं करा. लाना कर दिया था. हाँ, देखो, अभी अभी आपने डिक्टेशन में क्या लिखा है? डिक्टेशन में आपने लिखा है, एक होता है कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ, एक होता है अल्टरनेटिव रिलीफ. ठीक है जी. और ये ये जो काइंड्स है, ये वाली काइंड्स करने से पहले एक बार कृपा दृष्टि डाल देते हैं. ठीक है ना. जब रिलीफ की हम बिल्कुल बेसिक दृष्टि से, बेसिकली जब हम रिलीफ की बात करेंगे तो एक मेन रिलीफ होता है. ठीक है ना. एक मेन रिलीफ होता है, एक सब्सिडरी होता है, या सब्सिक्वेंटली कह लो उसको. ठीक है. सब्सिक्वेंटली रिलीफ होता है. ठीक है. मेन रिलीफ वो है जो आप बेसिकली प्रिंसिपली क्लेम करते हो. जैसे कि कोई डिक्लेरेशन करवानी है आपने, तो आप डिक्लेरेटरी सूट डालोगे. तो इस डिक्लेरेटरी सूट के अंदर जो आपने डिक्लेरेशन क्लेम करी है वो आपका प्रिंसिपल या फिर मेन रिलीफ है. ठीक है जी. सही. सब्सिडरी या फिर सब्सिक्वेंट कौन सा रिलीफ हो गया? जो मेन नहीं है. सीधी सिंपल सी बात है. ठीक हो गया. चलो जी. अब ये देखना है आपने. देखो, मेन रिलीफ तो कोई ना मांगे ऐसा नहीं हो सकता.
ऐसा कोई सोच तो नहीं रहा ना कि उससे गलती होगी, उसने उसने मेन रिलीफ ही नहीं मांगा। गलतियां कहाँ हो रही है, या फिर सेक्शन 11 ऑर्डर टू रूल टू सीपीसी कहाँ पेज फंस रहा है, जहां पर सब्सिडरी रिलीफ्स की बात कर रहे हैं, सब्सिक्वेंट रिलीफ्स की हम जब बात करते हैं, ठीक है ना। अब ये सब्सिक्वेंट रिलीफ जो है, ठीक है ना, इसको समझने के लिए अपने को समझना पड़ेगा कि ये कैसा रिलीफ है, ये कॉन्सिक्वेंशियल है या फिर अल्टरनेटिव, ठीक है। अगर ये सब्सिडरी रिलीफ कॉन्सिक्वेंशली मिलेगा किससे, मेन रिलीफ से, यानी ये सब्सिडरी रिलीफ, ठीक है ना, अगर मेन रिलीफ के आने के बाद ही मिलेगा, यानी आप मेन रिलीफ ना क्लेम करो और सीधा ही सब्सिडरी रिलीफ क्लेम करोगे तो आपको नहीं मिले, ऐसी सिचुएशन है, ठीक है ना। इस रिलीफ को बोलेंगे कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ, ठीक हो गया। अच्छा, हालांकि सब्सिडरी रिलीफ है लेकिन फिर भी ये कॉन्सिक्वेंशियल नहीं है, ये अल्टरनेटिव है। भैया तो ये दे दो, नहीं तो ये दे दो मेरे को, कंपनसेशन नहीं दिलवा दो, डैमेज दिलवा दो, कंपनसेशन डैमेजेस नहीं दिलवा रहे तो भैया मेरे को इंडेमनिटी दिलवा दो, कंपनसेशन डैमेजेस इंडेमनिटी नहीं दिलवा रहे हो तो कोई बात नहीं, वो पेनल्टी दिलवा दो जज साहब। तो ये क्या है, ये अल्टरनेटिवली मांग लिया। मेन रिलीफ मिले ना मिले इसकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ये आपको मिलना है तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा, ठीक हो गया। लेकिन जब हम कॉन्सिक्वेंशियल होने की बात करते हैं किसी रिलीफ के, तो इसका मतलब होता है कि मेन रिलीफ पहले आएगा, अगर मेन रिलीफ नहीं आया तो ये कॉन्सिक्वेंशियली तो मिलेगा ही, ठीक हो गया। जैसे कि एग्जांपल हमने क्या किया, सूट डला है डिक्लेरेशन का, ठीक है ना, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है इसके रिगार्डिंग, ठीक है ना। क्या डिक्लेयर कर दो दैट आई एम दी ओनर, और प्लस मेरे को पोजेशन दे दो, यानी प्लस रिकवरी ऑफ पोजेशन का भी सूट है, ठीक है। इसके अंदर ये जो डिक्लेरेशन है ये है आपका मेन रिलीफ, और ये जो पोजेशन है ये है आपका कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ। इस केस के अंदर लेट से आपकी कोर्ट में ये केस आया है, ठीक है जी, और आपका मंतव्य क्या है, या आपको क्या लग रहा है कि भाई ये तो इसकी प्रॉपर्टी है ही नहीं, नहीं इसकी प्रॉपर्टी फेक कर रहा है, ठीक है ना, या फिर आपके कंसाइंस के हिसाब से सफिशिएंटली प्रूव ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना। एक 70-80 साल पुरानी इलिजिबल सी डॉक्यूमेंट लेके घूम रहा है, ठीक है जी। बताओ दोगे, डिक्लेयर करो किसके फेवर में, जब आप इसके फेवर में, यानी आप इसको ओनर ही डिक्लेयर नहीं कर रहे हो, बताओ पोजेशन दोगे। कोई बात नहीं, पोजेशन ले ले भाई, करोगे। किसी के मन में सवाल आए तो पूछना। शाबाश। एडवर्स पोजेशन तो एक दूसरी चीज है, एडवर्स पोजेशन करने के लिए आपको ओनरशिप प्रूव नहीं करानी पड़ती, खाली पोजेशन वो डिक्लेयर नहीं कर, वो ऐसे नहीं बोलेगा मैं मेरा कब्जा, मैं कब्जादारी हूँ, डिक्लेयर कर दो, समाज को बता दो मैंने कब्जा किया, नहीं, वो क्लेम नहीं करता, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि सेक्शन 34 में जो डिक्लेरेशन का सूट डाला जा रहा है वो किसी टाइटल के लिए डाला जा रहा है, किसी लीगल करेक्टर के लिए डाला जा रहा है, ठीक हो गया, सही। कोई टाइटल नहीं है उसका, एडवर्स पोजेसर का कोई टाइटल नहीं, ठीक हो ना, टाइटल तो ओनर के पास, ठीक हो गया। तो उस सूट की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। ये इसलिए आपको बोला क्योंकि किसी किसी बच्चे के माइंड में सवाल आ जाता है, ठीक है ना, जब वो समझ रहा होता है, सही, क्वेश्चन बढ़िया था, ठीक है ना। चलो डन। बताओ जरा, आप डिक्लेरेशन ही नहीं कर रहे हो, यू बीइंग अ जज, लेट्स से मैं हूं ये बंदा, ठीक है ना, आपकी नजरों में प्रूव ही नहीं हो पा रहा है मेरा केस, मैंने प्रूव ही नहीं किया, आप डिक्लेयर ही नहीं कर रहे हो, बताओ मेरे को पोजीशन दोगे, नहीं दोगे, क्यों, क्योंकि ये कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ, ठीक हो गया। चलो, अल्टरनेटिव रिलीफ, ठीक है ना, सिंपल, पोजेशन मांग लिया, ठीक है ना, या फिर सीधी सिंपल सी बात है, ये बोल दिया कि भाई डिक्लेयर कर दो, या तो डिक्लेयर कर दो, ठीक है ना, और नहीं तो मेरे को जो है आप डैमेज दिलवा दो, मेरा नुकसान तो हो ही गया है, ठीक है ना। डिक्लेयर मत करो, मत करो डिक्लेयर, ठीक है ना, ऐसे कर दो नहीं है प्रॉपर्टी मेरी, ठीक है ना, बट मेरे को देखो मैंने कंस्ट्रक्शन तो कर दी सेम प्रॉपर्टी में, ठीक है ना, मैंने इंजन भी लगा रखा है यहाँ पे, मैंने ट्यूबवेल भी लगा रखा है, स्विमिंग पूल भी बना रखा है, 2 कमरे भी छाप रखे, नूने चाय पानी भी पिया हूँ, नूने हुक्का भी पिया हूँ, ठीक है, मेरा खर्चा हुआ था, मेरा खर्चा मेरे को डैमेज दिलवा दो,
सही, तो ये हो गई अल्टरनेटिव। या तो डिक्लेयर कर देगी कोर्ट कि भैया ये प्रॉपर्टी इसकी है, पोजेशन का अख्तियार इसका है, ठीक है, अन्यथा ये बोल देगी भाई तू अपने डैमेजेस पकड़ और निकल, ठीक है ना। अब डिक्लेरेशन का और ये डैमेजेस का आपस में कोई लिंक नहीं है, ये अल्टरनेटिव रिलीफ से, ठीक हो गया। अब डिक्टेशन क्या कह रही है, डिक्टेशन आपको कह रही है कि जब आप कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ की बात करोगे ना, ठीक है ना, तो ये मेन क्लोज में आ जाएगा सेक्शन 34 की, ये यही बात समझने की है इसके अंदर, बस यही सवाल है, जिस बच्चे को ये समझ में आ जाएगा सेक्शन 34 क्वेरी नहीं रहेगा उसके माइंड में कभी भी। अगर कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ की बात करोगे ना, ठीक है ना, तो सेक्शन 34 में सिर्फ आप डिक्लेरेशन क्लेम करो, आपको ये कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ क्लेम करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक हो गया। क्यों, जिसके फेवर में डिक्लेरेशन होगी प्रॉपर्टी की, इमूवेबल प्रॉपर्टी की, पोजेशन उसी को मिलेगा, क्योंकि कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ है पोजेशन का, ठीक हो गया। वहां पर क्लेम करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये है आपका मेन क्लॉज या फिर मेन प्रोविजन सेक्शन 34 का। ऑन दी अदर हैंड जो प्रोवाइजो है सेक्शन 34 का, ठीक है ना, सही, वो कोर्ट के ऊपर ड्यूटी लगा रहा है, ड्यूटी इंपोज कर दी कोर्ट पे कि भाई मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स को रोकना है, ठीक है ना। इस कारण से जब तक क्लेम नहीं करेगा कौन, प्लेंटिफ, उसको नहीं देंगे वो रिलीफ। ऊपर क्या लिखा है, कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ अगर है तो क्लेम करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक मिलेगा, ठीक हो गया। देखो जैसे पीछे कुछ एक सेक्शन में हमने ये पढ़ा था, मुझे नंबर बताना, जिसके अंदर ये पढ़ा हुआ, ये जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि कंपनसेशन मांग लिया है, ठीक है ना, और कोर्ट की नजर में स्पेसिफिक रिलीफ नहीं बनता लेकिन कंपनसेशन बनता है, कंपनसेशन दे देंगे, ठीक है जी। भाई स्पेसिफिक रिलीफ बनता है, कंपनसेशन नहीं बनता, तो उसे स्पेसिफिक रिलीफ देंगे, कंपनसेशन नहीं देंगे। कोर्ट के पास ये भी डिस्क्रिप्शन है कि भाई कोर्ट की नजर में स्पेसिफिक रिलीफ बनता है परंतु उसके साथ में कंपनसेशन देना ही पड़ता है, क्योंकि कंप्लीट एंड ऑफ जस्टिस भी करना है, तो स्पेसिफिक रिलीफ भी दे देंगे और कंपनसेशन भी दे देंगे। कौन सा सेक्शन पढ़ा था, शाबाश 21 पढ़ा था, ठीक है ना। एडिशनली, ठीक है ना, कॉन्सिक्वेंशियली, अल्टरनेटिवली, तीनों आ गए उसके अंदर, ठीक हो गया, सिंपल। तो कोर्ट को लगता है ऐसे है। सही, जो कॉन्सिक्वेंशियल है उसके अंदर आपको क्लेम करने की आवश्यकता नहीं, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन, क्योंकि एसआरए की प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोर्ट दे देगी आपको। अगर अल्टरनेटिव रिलीफ के उसमें आएगा तो फिर आपके ऊपर सेक्शन 34 का प्रोवाइजो अप्लाई हो जाएगा, एंड वाया प्रोवाइजो टू सेक्शन 34 आपके ऊपर ऑर्डर 2, रूल 2 एंड सेक्शन 11 सीपीसी ये दोनों अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। आपने 2-3 पेज यही डिक्टेशन लिखी है, सही। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लिखा हुआ है इसके अंदर, जो यूं था कि मैं लिखवा दूंगा बस ये आपको, ठीक है ना। देखो इसके अंदर क्या लिखा है, ऑर्डर 6 रूल 16 का जिक्र आया था ना, है ना, डिक्टेशन। चलो ये लो, ये लो, स्पेसिफिक रिलीफ, ठीक है ना, मेन रिलीफ, ये मुंगेरी लाल शर्मा का जवाब है, ठीक है, तो ध्यान से समझना इसको। मेन रिलीफ के साथ में, अब मैं नहीं आपको बोल रहा कि ये कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ है या फिर अल्टरनेटिव रिलीफ है, ये आपको खुद समझना है। एग्जाम्पल एक हो सकता है, ठीक है ना, जो सवाल है वो एग्जाम्पल नहीं हो सकता, वैसे ये नहीं पूछोगे कि भाई एरियर्स जो है वो कौन सा रिलीफ है, ठीक है, मुझसे नहीं पूछना। चलो, ठीक है ना भाई, सूट में क्लेम करोगे आप, ठीक है ना। क्यों, एसआरए की प्रैक्टिस तो सारी की सारी कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पर आ चुकी है ना। कोर्ट को लगेगा भाई नहीं मांगने की जरूरत है तो कोई बात नहीं, नहीं मांगा तो भी ले जा, कोर्ट को नजर में ये आएगा नहीं मांगने की जरूरत थी, नहीं मांगेगा तो मैं नहीं दूंगा, ठीक है ना, तो भैया फिर वो मेंशन करना पड़ेगा। चलो, अब क्या है, मुंगेरी लाल शर्मा ये क्या करता है, ऑर्डर 6 रूल 17 की एप्लीकेशन लगाता है ना, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स की। स्टेज कौन सी चल रही है, स्टेज चल रही है ट्रायल, ट्रायल हैज ऑलरेडी बीन कमेंस्ड,
ठीक है ना, शुरू हो चुका है, सही है, ट्रायल की सेहत भी अच्छी हो चुकी है। इस लेवल पे जाके मुंगेरी लाल शर्मा जो है, मुंगेरी लाल को हसीन सपना आया क्या कि अरे वो तो मैं भूल गया, एरियर्स भी मिल सकते हैं मेरे को, सोने पे सुहागा। ठीक है जी, तो फिर एकदम से वो भागता है। क्या, अब वो 6-17 की एप्लीकेशन, सही। चलो जी, हमने डिक्टेशन के अंदर ये एप्लीकेशन जो लगी थी उसका फेट डिसाइड किया था, बताओ आप अलाउ कर रहे हो या नहीं? ये डिक्टेशन में आप लिख चुके हो, उसमें लिखा है अलाउ या डिसअलाउ? अलाउ। हाँ जी। नो। 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 वाई नो? अमेंडमेंट तो ट्रायल सीट से पहले होती है ना। हाँ, बेसिकली जो डिक्टेशन में जो जिक्र लिखा हमने वो 6-17 के प्रोवाइजो का जिक्र लिखा है। वाई नो? हाँ, पूछते हैं। ठीक है ना, अगेन ये 6-17 का प्रोवाइजो पढ़ना, ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर खाम का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज ये कंप्लीट करा के आज 36, 37, 38 दर्शन तो करा दूं। ठीक हो गया? अभी तो 1.5 पेज की डिक्टेशन हो रहा है, पोपट बना दिया मैंने तुम्हारा। मैं लिख बोलता है कि 4-5 पेज की डिक्टेशन तो छुट्टी होती है। तो ज्यादा बच्चे तो है नहीं, मान लो 2 बच्चे ना है तो फिर मेरे को भी ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी मेहनत करो और बच्चे लेके आओ। बच्चे लेके आओ। ही क्या, तेरी भी जिम्मेदारी है। हाँ, ही क्या होता है? ठीक है, आओ जरा, अब मैं मेन सवाल के ऊपर आता हूँ। ठीक है ना, ये 6-17 का प्रोवाइजर जरूर देख लेना, क्योंकि भूल गए हो। है, हमने डिसअलाउ करी। गलत बताया तुमने हाँ हाँ, शायद गलत। 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 हाँ, चलो भैया, मुंगेरी लाल ने सिर्फ डिक्लेरेशन करा लिया है, जो कि उसके फेवर में आ गया है। ठीक है जी, अब ये एरियर्स के लिए आया है। मंगीलाल जो भी, मंगीलाल एमएस था ना मुझसे। ठीक हो गया, स्टेट ऑफ एमपी, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस एमएस। चलो, सिंपल है। अब ये क्या कह रहा है कि भाई मेरे को तो एरियर्स भी दिलवाओ, अगेन सेक्शन 11 का सवाल नहीं। ठीक है, ऑर्डर टू रूल 2 का सवाल नहीं। सिंपल आपने ये बताना है कि जो एरियर्स था, सवाल ऑफ एरियर, सवाल एरियर, क्या वो कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ था या फिर वो अल्टरनेटिव रिलीफ था? ये मैं मिटा ही देता हूँ इतना ना, ऊपर ही करते हैं इसको। अरे भैया ऐसे नहीं करते, रुक जाओ। शाबाश। कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। चलो हो गया। फटाफट से करना ताकि हम डिक्टेशन कर सकें इसे। कौन सा एरियर्स का सवाल? कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ है या अल्टरनेटिव रिलीफ है? कॉन्सिक्वेंशियल, चलो। अल्टरनेटिव। हाँ, अल्टरनेटिव।
अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव, वाई अल्टरनेटिव। ये तो बहुत सिंपल सवाल था। सॉरी। ओह, रेट देवता नाराज हो रहा है। हाँ, चलिए, वाई वाई कॉन्सिक्वेंशियल। शाबाश, वेरी गुड। बिल्कुल सही बात है। एरियर्स यानी जिसकी सैलरी फंसी हुई है पिछले कुछ समय की, है ना, जब महीने की सैलरी फंस जाए, 6-7 महीने हो जाए, तो उस कट्ठे अमाउंट को एरियर्स बोलते हैं। तो फिर ठीक है। अगर वो डिक्लेयर नहीं करती कि तो आपका अलर्ट नहीं है तो उसको अल्टरनेटिव मिल जाता, क्योंकि उसने जब तक अपना रेजिग्नेशन भी तो नहीं कैसे दिया मिलता? था। तो अब क्यों मिलेगा सर सुनो, कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ? अब वो अब डिक्लेयर कर दिया ना, फैक्ट्स तो तो ऐसे ही थे। बताया तो सुनो नहीं ना सुनो वो। सुनो, क्या कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था, क्या फैक्ट बताए थे कि हाँ भाई ये क्लर्क डिक्लेयर कर दिया था। है ना? वो चाहता तो इस सूट में ले सकता था एरियर्स, बट वो नहीं ले पाया। ठीक है ना? हम तो यहाँ पे ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम इसको कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ में माने या अल्टरनेटिव, क्योंकि इसके बाद एक सवाल और पूछूंगा जिससे कंक्लूड होगा वो केस। फैक्ट्स तो ये है केस के कि पहले उसने जो है अपना डिक्लेरेटरी सूट डाला, डिक्लेरेटरी सूट उसके फेवर में आ गया। अब वो एरियर्स के लिए आया है। ठीक है ना? लेट से ऐसा सिंपल सूट आ जाए जिसमें डिक्लेरेशन भी मांग रखी है और एरियर भी मांग रखी है। ठीक है, और कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि नहीं, हम तो डिक्लेयर करेंगे ही नहीं। बताओ एरियर्स मिलेंगे उसको? नहीं मिले। तो एरियर्स का मिलना उसकी डिक्लेरेशन पर कॉन्सिक्वेंशियल है। परिणाम, कॉन्सिक्वेंट का मतलब परिणाम होता है बेसिकली। ठीक है ना? परिणाम तय जिसको बोलते हैं हिंदी में, एग्जैक्ट मीनिंग परिणाम तय, या वस्तु तय, या फिर कॉन्क्लूसिवली, जो भी। ठीक हो गया? तो इस नतीजे पे पहुंच गए कि क्या ये कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ है? यस, कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ है। ठीक है जी। अब कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ होने का मतलब क्या है कि भाई ये उसको पता था, ऑन द वेरी फर्स्ट डे उसको पता था। ठीक है, सही, जानबूझ के रेलिंक्विश किया उसने। अब नया सूट डाल रहा है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ठीक है ना? इसलिए मैं अपने अगले सवाल का पोपट कर चुका हूँ। ठीक है ना? इस केस के अंदर बेसिकली क्या डिसाइड हुआ? इस केस के अंदर यही डिसाइड हुआ कि देखो कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ, अब ये कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ क्या है, कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ में क्या करेगी कोर्ट भाई? आगे मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट अलाउ करेगी या नहीं करेगी, या अल्टरनेटिव में अलाउ करेगी या नहीं करेगी। ठीक है ना? यही चीज आपने डिक्टेशन में समझी, जिसको मैंने भी डिस्कस किया था। कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ में बताओ, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स क्या कोर्ट अलाउ करेगी? नो। अल्टरनेटिव प्रोसीडिंग्स में कर देगी। ठीक है ना? और वो भी देखेगी, क्योंकि ध्यान रखना सेक्शन 34 चाहे मेन क्लोज हो चाहे उसका प्रोवाइजो हो, ठीक है जी, इसमें कहीं पर भी ऑर्डर टू, रूल टू, 6, 17, 11 सीपीसी का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है ना? यहाँ के चंगुल से बाहर निकलेगा बंदा, प्लेंटिफ, ठीक है जी, उस प्लेंटिफ या फिर एप्लीकेंट, ठीक है ना, फिर वो ऑर्डर टू, रूल टू, सेक्शन 11 सीपीसी के फंदे से उसको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर वहां से भी बाहर निकल गया तो नया सूट अलाउ हो जाएगा, अन्यथा नहीं। डन हो गया? चलो, लिखो जरा इसको। मुंगेरी, मंगीलाल सॉरी, रेफरेंस डालो बस खाली से, मंगीलाल शर्मा केस। लिखो, सुप्रीम कोर्ट ओपाइंड दैट normally in the case like the instant one, the plaintiff when seeking relief of declaration that he continues to be in the services would also seek consequential reliefs
of reinstatement reinstatement RENISTATEMENT दोबारा से उसको नौकरी को रिज्यूम करना reinstatement and arrears of salary full stop. This is the respondent as plaintiff did not do so. Full stop. This is what in fact the appellant did, and the respondent has been reinstated. Full stop. Moreover के बाद comma, once the government servant is appointed to his post or office, comma, he acquires a status and his right and obligations are no longer determined by consent of both parties, but by the status or statutory rules which may be framed by the government. Full stop. The legal position of a government servant is more than one of the status than of a contract. Full stop. Next paragraph now. In the present decree, the court does not direct reinstatement or payment of arrears of salary. चलो एक और सवाल पूछता हूँ, उसके बारे में भी लिखवा दूंगा। ये देखो, अब देखो मांगेलाल ने क्या किया। अब उसको पता था भाई कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ है, फ्रेश सूट तो अवेलेबल है ही नहीं, एफएस तो अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है। तो देखो इसने क्या किया, इसने एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, क्योंकि एग्जीक्यूशन तो करवाएगा ही, एग्जीक्यूशन पिटीशन उसने फाइल करी, ठीक है जी। और उसमें जो है बोल दिया कि नौकरी तो दिलवाए रहे हो साहब, मेरे को एरियर्स भी दिलवा दो, ठीक है। लेट्स से वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट आपकी है,
बताओ दिलवा रहे हो या नहीं? नो 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 नो, शाबाश, वाई नो? ना है, सेम बात। क्यों नहीं? डिग्री में तेरी डिटेल्स कहाँ होती है? जवाब ठीक है लेकिन रीजनिंग दो। पीटी पीटी का नहीं है सवाल, सवाल मेंस का भी। ये आता है सवाल बेसिकली मेंस का। मांगेलाल पूछा जाता है। सैलरी और जॉब से, सर्विस से जुड़े हुए मैटर्स है ना। जैसे सेक्शन 11 के अंदर सबसे सबसे इम्पोर्टेंट केस वो खान साहब है, जो पुलिस में थे, यूपी पुलिस में। आईजी अपॉइंट करता है और डीआईजी सब वो कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। नवाब हुसैन। स्टेट ऑफ द समझ गए? सर्विस के तो सारे सारे मैटर इम्पोर्टेंट है। सोचो बताओ। हाँ जुरिडिक्शन, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ठीक है। हाँ हाँ, किससे किससे? थोड़ा सा और अप्रोप्रिएट करो, शाबाश। सूट दोबारा से नहीं खुलेगा। द कोर्ट हैज नो पावर टू गो बियॉन्ड द डिग्री। स्पेसिफिक लिखा हुआ है। अब ये मत बोला हमने ये बोला नहीं, आप लोगों ने ये नहीं बोला। ठीक है जी। जो आपने एग्जीक्यूशन के सेक्शंस पढ़े थे उसमें दूसरा ही सेक्शन था ये 42, ठीक है ना, 38, जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बीच में आ रहे थे, ठीक है जी। कौन कौन से सवाल जो है, जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है जो सुन सकती है फर्दर, अलाउ कर रखे हैं पर्टिकुलर पर्टिकुलर सवाल। ठीक है ना? ये लो, तुम अगर जम करना ही चाह रहे हो तो ये लो, डिग्री आ गई, डिग्री होल्डर है। ठीक है जी। डिग्री होल्डर के फेवर में इमूवेबल प्रॉपर्टी आ गई है। ठीक है ना? डिग्री होल्डर ने क्या करा, एग्जीक्यूशन की पिटीशन डाली। ठीक है, एग्जीक्यूशन की पिटीशन डाल के डिग्री होल्डर खत्म हो गया। बताओ। एलआर के विषय में तो नहीं थी डिग्री। कौन सी कोर्ट करेगी अब? साथ साथ में ये भी बोल रहे कि ऐसा करो जी, पहले पहले ही आप अलग अलग करके बांट दो, अलग अलग पोजीशन दे दो हमको, बारह पार्टीशन भी कर दो। कौन सी कोर्ट करेगी? एग्जीक्यूटिव कोर्ट ही करेगी। ठीक है, सिंपल है। चलो लिखो, क्या लिखा है? लिखो, फुल स्टॉप। द above said claims will not be available through the process of execution, since process of execution, since in no case an executing court, एग्जीक्यूटिव मत करना, can go beyond the decree. Full stop. The respondent, as a decree holder, was free to seek his remedy for arrears of salary in the original suit for declaration.
Full stop. The executing court has no jurisdiction to direct payment of arrears or to grant any other consequential relief. Full stop. पैराग्राफ अलग करो, लिखो द अपेक्स कोर्ट wide its leading judgment इन वेंकटराजा केस, सिंपल इतना रेफरेंस लिख लो, आरईएफ करके, आरईएफ और डबल डॉट वेंकटराजा केस 2013 रीअफर्म्ड, री और अफर्म के बीच में डैश डाल लेना, दैट इज सूट फॉर डिक्लेरेशन without claiming for the relief of possession is not maintainable. Full stop. A declaratory decree containing declaration as to the title of ownership of the property was passed by the court. Full stop. No relief of possession was claimed in the plaint and the same was not granted also. Full stop. In the execution of proceedings, comma, a decree holder cannot claim possession of the property since the execution court cannot go behind the decree. सही हो गया, सिंपल है इसे वो कौन सी उसको मतलब ग्रांट दी को क्या, अब ये बात है कि कुछ लिए पैसे नहीं हो तो कोर्स को हम तो ग्रांट दे दी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, लेकिन जो ट्रायल को जो भी हाँ उसी के लिए तो बात कर रहे हैं, अगर कॉन्सिक्वेंशियल है तो वो क्लेम करने की आवश्यकता नहीं, सेक्शन 34 का मेन प्रोविजन भी यही कह रहा है, अगर रिलीफ कॉन्सिक्वेंशियल है ना तो आपको ये क्लेम करने की आवश्यकता नहीं है, डिक्लेरेशन क्लेम करने की आवश्यकता नहीं उनके अंदर, ठीक है ना, डिक्लेरेशन आपको बिना उसके करे मिल जाएगी, या फिर डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन मांग लो, वो कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ कोर्ट को ठीक लगेगा डिस्कशन के हिसाब से तो अपने आप मिल जाएगा। हाँ हाँ, हम्म, नीचे फिर प्रोवाइजो भी है, आ जाओ, फिर भूल गए, सेक्शन 11 कहाँ जाएगा सीपीसी, ऑर्डर टू रूल 2 कहाँ जाएगा सीपीसी, ये एग्जाम्पल ही तो है,
देखो सिर्फ एक प्रोविजन पढ़ के केस डिसाइड करके नहीं लिखवा सकता आपको, ये गलत हो जाएगा। जैसे उसमें प्रॉपर्टी मांगी, टाइटल ले लिया, टाइटल तो डिक्लेयर हो गया, हाँ पोजीशन पोजीशन राइट मांगी, हाँ वो मिल जाएगा उसको। मिल जाएगा, ठीक है ना, एसआरए में मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। सर अगर एडवर्स पोजीशन लेकिन अगेन ये ध्यान रखना, कोर्ट की ड्यूटी नहीं है, कोर्ट की ड्यूटी नहीं है। हाँ ऐसा कर सकते हैं कि जी ऑर्डर 617 की एप्लीकेशन मत लगाओ, क्या क्या है जी कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ है, आप हमारी वर्बल जो है वो अलाउ करवा दो, ठीक है ना, वर्बल प्रेयर है वो लिख लो, वो नोट कर लो, ठीक है ना, कोर्ट नोट कर लेगी और दे देगी पोजीशन। अगेन कोर्ट की ड्यूटी मत लगा देना, कभी माइंड में कर लोगे कोर्ट की ड्यूटी है, कोर्ट को मम्मी बना दोगे, कोर्ट मम्मी नहीं है, किसी भी सिचुएशन मम्मी नहीं बनेगी कोर्ट, ठीक हो गया। सिंपल ये कह रहे हैं कि कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ अगर है तो सिर्फ डिक्लेरेशन मांग लो, डिक्लेरेशन तो मांगनी पड़ेगी, वो फर्दर मांगने की आपको जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ अपॉन दी डिक्लेरेशन वो डिपेंड है, ठीक है, सही। इसी को घुमा के जो है विकास सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। चलो अब ये जो चीज लिखवाई आपने, ये यहाँ पर क्या लिखवाया, सब समझ रहे हो ना, ये पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते समझते हो कि नहीं? नहीं नहीं समझते, पूछा ना अभी थोड़ी देर पहले 617 में सवाल पूछा था। हाँ चलो देखो सिचुएशन क्या है। हाँ अरे बता रहा हूँ रुक जा देखो सिचुएशन क्या है, अभी आपने क्या पढ़ा है, अभी आपने ये पढ़ा भाई क्लेम करना पड़ेगा, क्लेम नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। यूनिवर्सल प्रिंसिपल है सेक्शन 11, रेस जुडिकेटा एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, ठीक है ना। सेक्शन 11 कहाँ है, ऑर्डर टू रूल टू क्या आ गया, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है ऑर्डर टू रूल टू, फिर कहां से आ रही है बाजी, चलने दो आगे क्लास को। चलो जो भी सवाल के ऊपर आओगे, ठीक है ना, वरना डिक्टेशन में रह जाओगे, ये निपटेगा नहीं, ठीक है ना, हालांकि इंपॉर्टेंट है, कोई बात नहीं, तुम 2 क्लास लगा सीख लेना। चलो एग्जीक्यूशन की जो कोर्ट है वो डिग्री के बाहर नहीं जाएगी, दोबारा केस नहीं खुलेगा, ठीक है। चलो मैं सिचुएशन दे रहा हूं आपको, आप बताना कोर्ट क्या करेगी। हमने अभी तक क्या सवाल करा कि भाई डिग्री के अंदर जो है पोजेशन के विषय में लिखा ही नहीं हुआ, तो पोजेशन भी दे दो, तो कोर्ट नहीं देगी, कौन सी, एग्जीक्यूशन वाली कोर्ट, ठीक हो गया। चलो ठीक है, ये देखो सिचुएशन क्या हुई, डिग्री होल्डर के फेवर में सूट आ गया है, डिग्री होल्डर है ऑब्वियसली, डिग्री आ गई इसी पर, ठीक है ये सही बात है। जब तक केस चलता रहा ठीक है, यह पोजेशन क्लेम ही नहीं कर सकता था। क्यों क्यों नहीं कर सकता था क्लेम, क्योंकि जिस डिफेंडेंट के अगेंस्ट में डिक्लेरेशन मांग रहा था उसके पास ही प्रॉपर्टी नहीं थी, यानी उससे रिकवरी करवा ही नहीं सकते थे, डिफेंडेंट के पास पोजेशन ही नहीं था उस प्रॉपर्टी का जिससे हम क्लेम करवा लेते कॉन्सिक्वेंशली, ठीक है। चलो लेट्स से कोई फैमिली इशू है ये, और दो भाई जो है एक दूसरे से मिलकर प्रॉपर्टी का इधर उधर कर रहे हैं हिसाब किताब, डिक्लेरेशन हो गई है फेवर में, डिक्लेरेशन हो गई है, अब इसने क्या करा, एग्जीक्यूशन की कोर्ट में एग्जीक्यूशन डाल दिया है और पोजेशन मांग लिया है, बताओ यू आर द एग्जीक्यूशन कोर्ट, यस नो, कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ है, जनरल रूल के हिसाब से बताओ पहले, जो अभी आपने पढ़ा, जो लिखा आपने,
इसके हिसाब से नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसके अंदर कुछ मतलब स्पेशल सर्कमस्टांस नजर आ रहे हैं आपको इसका मतलब? यस नो? तभी तो जवाब नहीं आ रहा। जनरल तो सभी का यही है ना, जनरल के हिसाब से तो जो आपने लिखवाया है सर अभी तक उसके हिसाब से तो नो है। सिंपल व्हाई, क्योंकि एक एग्जीक्यूशन की कोर्ट कैन नॉट गो बियॉन्ड द डिग्री, दोबारा से केस रीओपन नहीं होगा, ठीक है ना। फिर वो ट्रायल ट्रूयल बिठाओ, पूरे एग्जामिनेशन कराओ, क्रॉस एग्जामिनेशन चीफ और री एग्जामिनेशन, वो इधर ही भड़क लेगा, केस तो कभी सुलटेगा ही नहीं सिविल, है ना। क्योंकि सिविल कोज ऑफ एक्शंस और सिविल जो डिफेंस ग्राउंड्स वगैरह वो तो चलते रहते हैं, कंटिन्यूस नेचर के होते हैं कई बार, ठीक हो गया चलो। लेकिन एक कोटेशन जो हम बार बार करते हैं कि कोर्ट किसी को भी किसी भी समय किसी भी मुहूर्त में इम्पॉसिबल करने के लिए नहीं कह सकती। जब तक ये ट्रायल चल रहा था, जब तक डिग्री नहीं आई थी, तब तक कोर्ट कह ही नहीं सकती थी कि भाई पोजेशन, ठीक है ना, ठीक है ना, तूने पोजेशन का नहीं किया। तो क्या डिग्री आने के बाद कोर्ट इम्पॉसिबल जो पहले कर नहीं सकता था, क्या उसके लिए एनफोर्स कर सकती है? ठीक है ना। तो इस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस के अंदर, ठीक है ना, एग्जीक्यूशन कोर्ट जो है, ठीक है ना, टू सम एक्सटेंट कैन गो बियॉन्ड द डिग्री। सिंपल। कंटिन्यू करो डिक्टेशन, क्या लिखा आपने? फुल स्टॉप। However, the apex court explained following two exceptions. दो बजे डैश डालो, नीचे लिखो नंबर 1 एक्सेप्शंस, लिखो नंबर 1 नीचे लिखो, वेयर द डिफेंडेंट was not in physical possession and not in a position to deliver the possession to the plaintiff. Full stop. Number 2 लिखो, where the parties are co-sharers, co-sharer of the suit property, comma, since के बाद फिर से comma, a co-sharer can maintain simpliciter suit for declaration of title against the other sharers, because possession of one co-sharer is a possession of all, and subsequently he can seek the relief of possession and separate possession through execution proceedings. आओ जरा रजिया रजिया बेगम के सवाल पे आ जाओ, फटाफट आ जाओ।
इसकी एक पेज में डिक्टेशन है, फटाफट निपटाते हैं इसको, फिर खत्म हो जाएगा। एक रुकमा बाई का केस और बचा है। रुकमा बाई का तो पहले भी कर चुके हैं ना। रुकमा रुकमा बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, एक्सप्लेन तो नहीं करना पड़ेगा ना। सवाल क्या था रजिया बेगम में? बता दो दोस्तों, जल्दी बता दो मेरे छोटे भाइयों बहनों, सवाल क्या था, फैक्ट्स क्या थे? आज ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा मैं, इस वजह से कह रहा हूँ, बोल देता वरना। लीड हो गई थी अपने बेटे के साथ। इम्प्लीट कर दिया आपने? लिखो फिर, नहीं डिस्कस करना तो रहने दो, आप कर ही नहीं रहे कॉपरेशन। आज नहीं हो गया मैं पोजीशन में बोलने की। लिखो, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द प्लेंटिफ is entitled to choose as defendants against whom he has a cause of action, and he should not be burdened with the task of meeting a party against whom he has no cause of action. Full stop. It was, however, कॉमा डाल के however के बाद suggested that on the face of the plaint no allegation, कॉमा डाल के no allegations made which even remotely suggests that respondent number 1 and 2 were interested to deny the alleged marriage of the appellant to respondent number 3, or were denying the same. Under section 34 SRA, a suit may be instituted against any person denying or interested to deny the plaintiff's legal character or a right to any property. Full stop. The plaint does not suggest that respondent number 1 and 2 were denying the
appellant's status as a wife of respondent number 3, comma, such an issue was raised by the appellant only, against respondent number 3. Full stop. In the law as well, it cannot be said that respondent number 1 and 2 are interested to deny the disputed status of appellant, since the status of respondent number 1 as wife and status of respondent number 2 as son of respondent number 3 is not in the list of affected, even if the appellant is declared to be the wife of respondent number 3, since under Mohammedan law, इस्लामिक मत लिखना, मुस्लिम लिखना। अगर किसी ने मोहम्मदन नहीं लिखना है, किसी ने मुस्लिम लॉ लिखना है, तो मुस्लिम लिखना बस खाली। एनी मुस्लिम कैन हैव more than one wife. Full stop. पैराग्राफ अलग करो जरा, छोटा सा बनाओ। The true legal position in the present suit between the appellant and respondent number 3 full stop. Furthermore, is that लिखा ना, is that लिखो, आगे लिखो, respondent number 3 के बाद is that respondent number 1 and 2 have no locus standi in the instant suit. Full stop. Furthermore,
comma, there is no danger of multiplicity of suits during the lifespan of respondent number 3. Full stop. If the order allowing respondent number 1 and 2 to be added as parties in a suit of present nature is allowed to stand, comma, it will open the way of the way to the way to a wider exercise of power under order A rule 10 and in a manner which was not contemplated by the CPC or section 34 SR, or it is permissible under Mohammedan law as well. ओके, इसको पढ़ना, जो बच्चा सवाल पूछेगा उससे डिस्कस कर लो आगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लीडिंग केस ऑफ द जुडिशियल एस्पायरेंसी या जुडिशियल कॉम्पिटिशन की तैयारी जो, इसको अच्छे से देखना, नहीं आए तो पूछना सवाल, ठीक है ना, वरना यस नो मैंने आपको बता दिया है। अभी तो 3 केस और है इसके, रुकमा बाई उससे लक्ष्मी नारायण। लिखो लिखो केस का नाम, रुकमा बाई वर्सेस लक्ष्मी नारायण, 1960 सुप्रीम कोर्ट। लिखो, द कोर्ट हेल्ड दैट there may be cases where the court may not be aware of further relief and hence it becomes the duty of defendant
to raise the objections in this regard as soon as possible, comma, if such objection is not raised within reasonable time, the court may go ahead to pass the decree. And subsequently another suit may be allowed for further relief full stop. It was also held that if the objection was not raised in the trial court by the defendant, then the appellate court shall refuse to accept the objection if the reasonable cause is not explained by the defendant. ठीक है जी, बाकी के आधा पेज भी नहीं है, ये जो है इसको कल निपटाते हैं, ठीक है। क्वेरी पर पढ़ के आना, ठीक है ना, थोड़ा कोऑपरेट करा करो, बिल्कुल ऐसे गुमसुम होके बैठ जाते हो। सारा का सारा जिम्मेदारी मास्टर के ऊपर थोपी हुई है आप लोगों ने ना। मेरे बस में होता ना तुम्हारा पेपर लिख के आ जाता मैं, लेकिन है नहीं।